السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں۔ میں آپ کا میزبان حافظ عبدالرحیم۔ ناظرین، آئیے ڈالتے ہیں ملک کی 10 بڑی اہم خبروں پر ایک نظر، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش بھی ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی خبر آپ کو سب سے پہلے مل جایا کرے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مفتی ہارون صاحب کے فرزند محمد فرحان کی طبیعت ناساز ہے۔ کل مفتی صاحب جلگاؤں لائیو بیان کے لیے حاضر بھی ہوئے تھے، لیکن پھر اچانک ہاسپٹل سے فون آیا کہ مفتی صاحب طبیعت کچھ زیادہ ہو گئی، آپ فوراً اسپتال میں آ جائیے، تو مفتی صاحب کو روانہ ہونا پڑا۔ مفتی صاحب کا کل کا لائیو بیان بھی کینسل کیا گیا تھا۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ دعا کریں، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ تامہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، ملٹری کے سابق کرنل اور مالیگاؤں بم بلاسٹ کیس کے ملزم کرنل پروہت کے وکیل اور سابق اٹارنی جنرل مقول روہتگی نے جمعہ کے دن ہائی کورٹ کو بتایا کہ پروہت ملٹری انٹیلیجنس افسر کی حیثیت سے اپنا کام کر رہا تھا اور اس معاملے میں ان پر فرد جرم عائد کیا گیا تھا۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ قومی تفتیشی ایجنسی NIA ضابطۂ اخلاق کے تحت سابقہ منظوری کے لیے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، حالانکہ وہ حاضر سروس آرمی افسر تھے۔ جسٹس SA شنڈے اور MS کارنگ پر مشتمل ڈویژن بینچ کے سامنے بحث کرتے ہوئے روہتگی نے کہا کہ پروہت فوج کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کے لیے کام کر رہے تھے۔ سینئر وکیل نے بتایا کہ انہوں نے 2008 کے مالیگاؤں دھماکے سے پہلے سازشی اجلاسوں میں شرکت کی، جبکہ انٹیلیجنس افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی ادائیگی کی۔ روہتگی نے استدلال کیا کہ لہٰذا NIA کو اس کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے CRPC کی دفعہ 197 کے تحت پہلے سے منظوری لینا چاہیے تھی۔ دفعہ 197 سرکاری ملازمین کے لیے ہے۔ ناظرین، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے بھارتی حکام سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں ہجوم کو قابو کرنے کے لیے پیلٹ گن کے استعمال سے اجتناب کرے، پرہیز کرے۔ تنظیم کا یہ بیان سری نگر میں محرم کے دوران جلوس ہائی عزہ پر سیکورٹی فورسز کی طرف سے پیلٹ گن کے استعمال کے بعد آیا، جس میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے اور 10ویں جماعت کا ایک طالب علم لگ بھگ اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے کشمیر میں بار بار شاٹ گن کے استعمال کے نتیجے میں مظاہرین اور راہگیروں کو شدید چوٹیں آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہجوم، یہاں تک پرتشدد مظاہروں کے خلاف اس ہتھیار کا استعمال کرنا جس سے شدید چوٹیں لگتی ہے، بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ موصوفہ نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی لیڈر جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کی پالیسیوں سے کشمیر میں لوگوں کو زندگیاں بہتر ہو رہی ہے، سیکورٹی فورسز کی طرف سے لوگوں کو مارنے، بینائی سے محروم کرنے اور زخمی کرنے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو چاہیے کہ ہجوم کو کنٹرول کرنے کی حکمت عملی پر نظر ثانی کر کے اس کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق تشکیل دے۔ ناظرین، کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو غریب مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس غریبی سے نمٹنے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، اور اقوام متحدہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ ہندوستان میں غریبوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ دن بدن غریب ہو رہے ہیں۔ کانگریس محکمہ موصولات کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جمعہ کو یہ کہا کہ اقوام متحدہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں غریبی بڑھ رہی ہے۔ 40 کروڑ ہندوستانی غریبوں کو غریبی سطح سے نیچے دھکیلا جا رہا ہے، لیکن حکومت اس سمت میں کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ چونکانے والی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ مودی حکومت اس بار غریبوں پر حملہ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غریبوں کو ترقی کا جھنجھنا پکڑا کر مودی اقتدار میں آئے تھے، لیکن 6 سال کے بعد ملک کے کیا حالات ہو گئے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ ملک کی حقیقت بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریبوں کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، غریبوں کے پیٹ میں اور ہاتھ میں کام نہیں ہے، گھر میں آرام نہیں ہے، کیا کرے غریب؟ کم آمدنی والا شخص روزگار جا رہا ہے، لیکن حکومت جیسے بے خبر سوئی پڑی ہے، غریبوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔
नाजरीन, अजमेर शरीफ दरगाह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आशिकों के लिए बड़ी खुशखबर है। राजस्थान के अजमेर में वाक़ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 7 सितंबर से अकीदतमंदों के लिए खुलने जा रही है। दरगाह को दोबारा खोले जाने के सिलसिले में ज़िला कलेक्टर प्रकाश राज और पुलिस सुपरिटेंडेंट किन्नौर राष्ट्रदीप कल दोपहर दरगाह पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया और देखभाल की, ताकि दरगाह खुलने के बाद आने जाने में लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो और जैसे मुल्क में कोरोना वायरस के हालात चल रहे हैं, इससे निपटने में भी आसानी हो। और दोनों तंजीमें सैयद ज़ादगान और शेख ज़ादगान के अलावा दरगाह दीवान भी 7 सितंबर से दरगाह को अवाम के लिए खोलने के हक में है। ज़राए ने बताया कि सबसे बड़ा मसला दरगाह के तमाम दरवाजे खोलने का है, ताहम कमेटी तमाम दरवाजे खोलने के हक में है, जबकि इंतजामिया फिलहाल इस पर गौर कर रही है। नाज़रीन, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी तातुल के दौरान लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर गए फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरोने ने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सूरत हाल संगीन और नाजुक है। LAC में मौजूदा सूरत हाल पर फौजी सरबराह ने कहा कि LAC पर सूरत हाल कदरे कशीदा है। सूरत हाल को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए एहतियाती तैनात ले ली है। हम किसी भी तरह के चैलेंज का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फौजी सरबराह ने कहा कि पिछले 2 महीने से सूरत हाल कशीदा है, लेकिन हम चीन के साथ फौजी और सिफारती दोनों सतहों पर मुसलसल बात कर रहे हैं। ये हो रहा है और मुस्तकबिल में जारी रहेगा। हमें यकीन है कि इस बातचीत के तवस्सुत से हमारे बीच जो भी इख्तिलाफ है इसका हल निकाल लिया जाएगा। हम यकीनी बनाएंगे कि मौजूदा सूरत हाल नहीं बदली जाए और हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में अहल है। फौजी सरबराह ने कहा, जवानों का हौसला बुलंद है, वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नाजरीन, अफसोसनाक वाक़ये में एक और मुसलमानों को अपनी मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा और ये बात कोई पहली मर्तबा नहीं है। हमारे मुल्क में ये बरसों से चले आ रहा है और फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उस दौर में इस बात को काफ़ी उछाला भी जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की स्टूडेंट्स 24 साला गजाला अहमद को दहली नसाद हिंदी मीडिया के इदारे ने उस वक्त तो मुलाजिमत देने से इनकार कर दिया जब उन्होंने अपने सर पर पर्दा रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था, हिजाब रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक स्कर्फ जिससे सर को ढकने के लिए हिजाब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि एक मुस्लिम औरत के लिए काफ़ी अहम कपड़ा समझा जाता है। गजाला अहमद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने काम के दौरान हर वक्त हिजाब पहनकर रहूँगी। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मुलाजिमत फराहम करने वाला खामोश हो गया और मुझसे कहा कि मैं आपकी दरख्वास्त पर मज़ीद बात नहीं कर सकता। इब्तिदा में उन्हें इंटरव्यू के बाद मुलाजिमत की पेशकश की गई और तनख्वाह के मुताल्लिक भी बात हुई थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो अपने मुतालबे पर कायम रहे तो मैं अपना हिजाब निकालूँ या फिर मुलाजिमत से महरूम हो जाऊँ। ताज्जुब के अंदाज में अहमद ने कहा कि ये मेरे लिए और भी हैरत की बात है कि मुलाजिमत का अमल पूरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान है। मोहतरमा गजाला अहमद ने सियासत.com से बात करते हुए कहा कि तरबियती तौर पर मैंने कई अहम मीडिया इदारों में इससे पहले काम किया। यूनिवर्सिटी की मुंतखब रुकन की हैसियत से मैंने काम किया और हिजाब में तकरीर भी की। कहीं पर भी इस तरह की इम्तियाजी सलूक का सामना मेरे साथ नहीं हुआ। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस की लपेट में आकर मरने वालों की तादाद को टीवी चैनल्स रोज़ दिखा रहे हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मुल्क में एक बड़ी तादाद हर साल मुख्तलिफ वजूहात से ख़ुदकुशी करती है। इस बारे में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड चौंकाने वाले हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2019 में 1,39,000 से ज़ायद लोगों ने मुल्क में ख़ुदकुशी की है। ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में ख़ुदकुशी के जो वाक़यात सामने आए हैं उनमें 27% नौजवान थे। रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इंडिया 2019 के मुताबिक 2019 में लगभग ख़ुदकुशी करने वालों में 61.93 बालिग थे। अगर 2018 के एदाद शुमार से इसका मुआवजा करें तो नौजवानों की ख़ुदकुशी की तादाद एक साल में 4% बढ़ी है। 2018 में 89,407 नौजवानों ने खुदकुशी की। जहाँ तक सभी उम्र वालों में देखा जाए तो इस तादाद में 4.3% इजाफा हुआ
गौरतलब है कि खुदकुशी के लिए फांसी लगाना सबसे आम तरीका है। 2019 में 74,000 लोगों ने फांसी लगाकर जान दी थी। रिपोर्ट में खुदकुशी की वजूहात पर भी गौर किया गया, जिससे पता चलता है कि घरेलू मसाइल, मोहब्बत में नाकामी, दिमागी बीमारी से ज़्यादातर अफराद अपनी जान देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 18 साल से ज़्यादा और 45 साल से कम उम्र के लोगों में घरेलू हालात खुदकुशी का सबब है। नाजरीन, माशी बदहाली के साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन मईशत गायब, मुल्क की खुशहाली गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। हिंदुस्तान की माशी बदहाली से मुतल्लिक कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी लगातार मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस ताल्लुक से एक बार फिर उन्होंने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत पर जबरदस्त हमला किया। माशी बदहाली के साथ बढ़ती बेरोजगारी का तस्करा करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 12 करोड़ रोजगार गायब, $5 ट्रिलियन मईशत गायब, आम लोगों की आमदनी गायब, मुल्क की खुशहाल और तहफ़्फ़ुज़ गायब, सवाल पूछो तो जवाब गायब। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विकास गायब है हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें बढ़ती बेरोजगारी से मुतालिक एक खबर की लिंक शेयर करते हुए मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। इस ट्वीट में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से रोजगार बहाली, इम्तिहान के रिजल्ट, मुल्क के नौजवानों के मसाइल का हल निकालने की गुजारिश की थी। नाज़रीन, डॉक्टर कफील खान का मामला आप सबको पता है कि 7 महीने के बाद उनकी रिहाई हुई और डॉक्टर कफील खान के लिए काफ़ी लोगों ने आवाज़ें भी उठाई। अभी खबर है कि डॉक्टर कफील खान की अहलिया शबिस्ता खान से फ़ोन पर बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने कोई भी ज़रूरत पड़ने पर बिला झिझक फ़ोन करके बात कही और साथ ही अपना प्राइवेट नंबर भी दिया ताकि बात करने में कोई दिक्कत ना हो। शबिस्ता खान से प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी ज़रूरत पड़े तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे बात कर लेना, और अपना प्राइवेट नंबर भी दिया। उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से तकरीबन 7.5 माह की कैद व बंद की सोबतें झेलने के बाद रिहा हुए डॉक्टर कफील की अहलिया शबिस्ता खान से कांग्रेस की कौमी सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने फ़ोन पर गुफ्तगू की। प्रियंका गांधी ने उनसे अहले खाना की खैरियत दरियाफ्त की और साथ ही शबिस्ता खान को अपना प्राइवेट नंबर भी दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भी कोई ज़रूरत हो बिला झिझक फ़ोन करें। डॉक्टर कफील खान की अहलिया से प्रियंका गांधी की यह गुफ्तगू कांग्रेस अक़लियती शोबे की रियासती चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कराई। वाज़ेह है कि मथुरा जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील का कुंबा सेक्रेटरी के पेश नज़र कांग्रेस इक़्तिदार वाली रियासत राजस्थान के जयपुर में मौजूद है। नाज़रीन, सुशांत सिंह मामले में फिर एक खबर आई है। मुंबई किसी के बाप की नहीं है, कोई मुझे रोक कर दिखाए। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर इंतहाई जुर्रतमंदी के साथ लगातार तनकीद करने वाली अदाकारा कंगना रनावत और शिवसेना और बीजेपी के साथ अब राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी सामने आ गई है। मुंबई पुलिस के खिलाफ बयानबाजी करके तनाज़ात के घेरे में फंसी कंगना रनावत के खिलाफ कल शहर और मुज़ाफ़ात के अलावा रियासत के दीगर अजला में जहां मुजाहरे किए जाने की खबर है, वहीं कंगना को मुंबई में घुसने ना देने की धमकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने दी है, जिस पर कंगना ने जवाब दिया है कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। मैं 9 सितंबर मुंबई आ रही हूँ, जिसमें हिम्मत है वो मुझे रोक कर दिखाए। मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझे मुंबई शहर में दाखिल होने से रोकेगा। उससे पहले शिवसेना पार्टी के तर्जुमान और राज्यसभा मेंबर संजय रावत, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ कंगना रनावत को मुंबई में ना आने की धमकी दी थी, कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंगना को मेंटल और पागल बताया और कहा कि मुंबई मराठी भाषा बोलने वालों की है और यह बाहर से आकर कोई भी हमारी मुंबई पुलिस के खिलाफ जहर नहीं उगल सकता, बयानबाजी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मैं एक शिवसैनिक हूँ और एक्शन करने पर यकीन रखता हूँ और यह कि मैं कभी किसी को खोखली धमकी नहीं देता, लेकिन कोई ऐरा गहरा पागल जैसे लोग जिनका मुंबई से कोई ताल्लुक नहीं, वो यहाँ आकर हमारी पुलिस के खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा।